Hello everyone, I am Rashi Prabha and welcome to our channel Combined CS the Extra Step. In this video we are going to talk about control statement. So before coming to the main point related to C programming, first you need to understand what does it mean, what is control and what is statement. So control means, let us understand with a real world example. In a family there is your papa is there, your mommy is there, then they have the controlling power of every children, correct? Controlling means you are taking somehow any decisions in the sense जहाँ पे आप ये एनालाइज करते हो वेदर आई हैव टू डू दिस टास्क और दैट टास्क. इट मीन्स कि अगर आपका एग्जामिनेशन लेटर सपोज कोई भी एग्जामिनेशन आपका फेब्रवरी में है, देन दिस इज जनवरी एंड, तो अभी आपको क्या करना चाहिए? आपको टीवी देखना है, आपको गेम प्लेइंग करना है या सिर्फ फोकस करना है अपने रिवीजन पे. तो यू आर टेकिंग सर्टेन डिसीजंस. सो how you are going to implement this real world example in the form of programming language by the help of control statement. And what is a statement? Statement you can understand if you are writing anything, any sentence, and when the sentence is ending with this semicolon, then in programming it is known as a statement. Let us now understand the whole concept. In C language has decision making capabilities and supports controlling of statement. Okay, C supports following control decisions making statement. अब why C programming language is very important and it is very rich languages कि आप देखो, हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो आपका इफ ब्लॉक होता है सिर्फ आप उसके थ्रू डिसीजन मेकिंग करते हो, बट यू हैव स्विच, यू हैव ब्रेक, यू हैव कंटिन्यू एंड यू हैव गो टू स्टेटमेंट. दिस होल स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो वी विल सी वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग. नाउ व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? अब अगर आपको डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू हैव सर्टेन ब्लॉक्स, यू हैव सर्टेन स्टेटमेंट. अब यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट की बात की. लेट अस सपोज इफ आई एम राइटिंग, इफ आई एम डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल इंटीजर नम, तो हाउ कंपाइलर इज गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इज अ स्टेटमेंट? देन यू हैव टू राइट हियर सेमीकोलन. सो दिस इज अ स्टेटमेंट कि whenever you are writing anything and if you are ending that term by the help of semicolon, this is known as a statement. Okay, then मैंने यहाँ पे एक बोला block. What is block then? तो block का meaning है if I have this symbol, मतलब I have opening and closing braces, then it is a block. You are writing something in this block. This is the scope of the, this is known as scope of the block. Okay, and now what you have to do is कि you have to use a powerful decision making statement आपको बनाना है. then obvious सी बात है इस block के बाद आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा if and condition. so this is if condition. so the if statement is used to control the flow of execution of the statement. it is a two-way decision statement which is used in conjunction with an expression. अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी. if raining, then I will take umbrella. Correct? I have written a code. It is written in a simple English language. आपको ये नहीं समझना है कि this is programming. अगर आपसे कोई पूछता है what is this statement, you can say these are known as pseudo code. ठीक है, इसको हम बोलेंगे pseudo code. That is known as pseudo code. This is pseudo code. What is प्रोग्रामिंग? देन जब आप कोई एल्गोरिदम लिखते हो, जब आप एक pseudo कोड लिखते हो, देन आप उसको कन्वर्ट करते हो बाय द हेल्प ऑफ सिंटेक्स, सम रूल्स डिफाइंड इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तब वो आपका एक लैंग्वेज कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो इट इज टू वे डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि हमने इफ कंडीशन लिखा, इफ एनीथिंग इज रिटन ओवर हियर इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू होगा देन आई विल परफॉर्म सर्टेन टास्क, अदरवाइज इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन आई विल डू सम अनदर थिंग. क्या है, कैसे है, वो सब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. बस आप इतना समझो, इफ़ यू हैव टू टेक एनी डिसीजंस तो उसके लिए सी में आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स होता है, एंड सो कई सारे स्टेटमेंट्स यूज होते हैं. एंड यू हैव सो मेनी वराइटीज ऑफ सी में डिसीजन मेकिंग के आप कई सारे सिंटेक्स के यूज कर सकते हो. एज फॉर एग्जाम्पल दिस इज सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड एल्स इफ. तो किस तरीके से एक एक करके हमको देखना है. लेट अस सी विथ एन एग्जांपल. द जनरल फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज, सपोज इफ आई हैव रिटन एनीथिंग इन इफ इट इज अ एक्सप्रेशन. लेट अस सपोज अगर मैंने लिखा नंबर इक्वल्स टू 5, तो अगर मैंने इस नंबर में 5 इनपुट किया है, देन if it is true then this statement will be executed.
इफ सपोज आई हैव इनपुट नंबर 6, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स। तो अगर फॉल्स होगा तो आपका एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो बेसिकली दिस इज नोन एज सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स, करेक्ट। If the if expression evaluates true, the block following the if statement are executed. That is written over here. The else statement is option. And now this is again one of the question of competitive examinations. आपसे ये पूछेंगे क्या every time else statement लिखने की जरूरत है, तो it is no, it is optional. So आप इसको नोट मेकिंग में जरूर लिखिए. Why it is optional is, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन के साथ आपका else ब्लॉक होगा ही, ठीक है। हम if के भी साथ काम चला सकते हैं, जस्ट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है. दैट्स वाई एल्स इज ऑप्शनल. इट इज यूज्ड ओनली इफ अ स्टेटमेंट और अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आर टू बी एग्जीक्यूटेड इन केस इफ द एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू फॉल्स. तो ये आपको नोट में ऐड करना है, दैट एल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शनल. ओके, नाउ जनरल फॉर्म ऑफ एल्स इफ. अब यहाँ पे बात आती है कि आप कई तरीके से नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हो. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. दिस इज नोन एज इफ एल्स इफ लेडर. दैट इज हमने इफ एक्सप्रेशन में डाला. सपोज अब हमें क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है ग्रेड कैलकुलेट का, ठीक है, ग्रेड कैलकुलेट का, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी. ग्रेड कैलकुलेट करना, लेटर सपोज मैंने आपको क्राइटेरिया दे दिया कि जो मार्क्स है अगर वो 30 to 40% के बीच में, देन स्टूडेंट इज फेल. इफ मार्क्स इज बिटवीन 40 to 50, उसका ग्रेड सी है. अगर 50 to 60 है देन उसका ग्रेड लेटर सपोज सी प्लस है, एंड सो ऑन. इस तरीके से यू हैव मल्टीपल कंडीशंस. तो मल्टीपल अगर कंडीशंस है तो वो एक इफ एक्सप्रेशन में तो नहीं होगा, उसके लिए आपको मल्टीपल इफ स्टेटमेंट आप लगा सकते हो या आप एल्स इफ लगा सकते हो. तो जिस तरीके से आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना शुरू करोगे तो आपको ये सारे सिंटेक्स एक बार में क्लियर होंगे. ओके, सो दिस इज हाउ रिटन ओवर हियर कि इस तरीके से आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो. नाउ अगेन यहाँ पे है कि जनरल फॉर्म ऑफ नेस्टेड इफ एल्स. नेस्टेड इफ एल्स हम कैसे लगा सकते हैं, तो हमने सपोज इफ के अंदर एक एक्सप्रेशन डाला. ओके, लेट अस सपोज मुझे फिर से कंडीशन चेक करना है, तो मैं फिर इस इफ के अंदर भी लगा सकती हूँ. तो आप देखो ये ब्लॉक, ये इफ शुरू हो रहा है और ये इफ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और ऑब्वियसली इफ एल्स का दिस इज द एल्स पार्ट. और अगेन मैंने इफ एस के अंदर एक फिर से इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया है. तो आप कितने तरीके से यूज कर सकते हो, मतलब कि आप चाहो तो आप एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज कर लीजिए. दिस इज ऑल्सो अलाउड. ओके, दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस. सेकेंड सीक्वेंस, हमने इफ लिखा, हमने इसके अंदर एल्स लिखा और इसके बाद हमने फिर से इफ लगा दिया, तो दिस इज नोन एज लेटर इफ. दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ. नेस्टेड इफ का मतलब है कि आपने इफ लिखा, इफ कंडीशन इज ट्रू, आप चाहते हो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक हो, तो आप फिर से यहाँ पे इफ लगा दीजिए. इधर आप फिर से इफ लगाइए या इसके अंदर आप इफ एल्स लगाइए. वॉट एवर इज रिक्वायरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स को लिख सकते हो. तो ना यहाँ पे मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा कि अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्राई करना है जिसमें आपको ग्रेड कैलकुलेट करना है, जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे कि आपको सपोज यहाँ पे चेक करना है कि अगर 30 to 40 के बीच में है तो आपको सी प्रिंट कराना, डेट इज फेल. सॉरी, यहाँ पे फेल आएगा. इस तरीके से आप एज्यूम कर लो और जस्ट ट्राई करो एक ग्रेड का प्रोग्राम बनाने का बाय यूजिंग कंडीशंस. किस तरीके से इफ कंडीशंस को यूज करते हैं. इफ यू फील एनी डाउट जस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इन दिस वीडियो इटसेल्फ. तो हम उस डाउट को नेक्स्ट टॉपिक में जरूर कवर अप करेंगे. सो इफ यू लाइक द वीडियो, आई जस्ट वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल कंबाइन सीज द एक्स्ट्रा स्टेप. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.